Hello everybody, welcome to Literary Shaman, and this is a series of lecture on the Greco-Roman period Greek civilization in European literature part of English literature series that I will be giving you all. And these lectures will be very helpful to the people who are preparing for UGC NET, JRF or CU SET exams or their PhD or master's entrances. And also if you are somebody who has a knack for English literature or literature in general, this will be really good for you. You can enjoy these lectures without having to give any exams or anything like that. I will be using the medium of both English and Hindi while giving you these audio lectures, and I will try to make it as more informative as much as possible for you all. And regarding the sources of this material, I want to inform you all that I am using David Dishes, Routledge and Encyclopedia of English Literature by Kalyani Valath ma'am. So starting with the Greco-Roman period, ग्रीको-रोमन पीरियड जो है हमारा 9th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक हमें लगता है, और ये पीरियड जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जिस तरीके से हम जब वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं इंडिया में या वैदिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से वी ऑल नो दैट इंग्लिश लिटरेचर का अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई सिलेबस नहीं हो सकता. इंग्लिश लिटरेचर को बॉर्डर्स में डालना इज़ अ वेरी टफ जॉब. तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके ही जनरली पढ़ते हैं, और वही आई थिंक सबसे आइडियल तरीका है इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का. बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो आई जनरली ट्राई टू डिवाइड लिटरेचर इन सब पार्ट्स और पार्ट्स, and then I try to study it. So here we will be studying the Greek civilization period and Greco-Roman period, और उसमें भी हमने 3 periods में Greco-Roman civilization को divide किया है. First period is Archaic Age, second period is Classical Age, and third period is Hellenistic Age. If you are students of UGC NET, you are preparing for UGC NET or you are preparing for CU SET, I will advise you to keep a pen and a paper with you. And yes, these audio lectures are not going to be enough for your exams. You will have to do your own research, you will have to do your own digging into the subject, and try as many mock tests as you can, as many questionnaires as possible, and especially regarding DU entrances, JNU entrances, Ambedkar University, the questions that will be coming in your exams, very few questions will be coming from this part of the syllabus, but there is still a chance that some questions can come. And regarding Plato and Aristotle, 100% 1 or 2 questions always come from Plato or Aristotle. And about UGC NET, I would really suggest you guys to go through Aristotle and Plato thoroughly, because if you pick up the 10-year exams, 10-year papers, they are full of these 10-year papers are full of Aristotle and Plato. So you anyway have to prepare, if you want to prepare for UGC NET, you have to go through this Greco-Roman period very thoroughly. Okay, so let's just start. Let's just begin with the Archaic Age. So the Archaic Age में क्या था? Archaic Age में यहाँ पर जो हमारा Greek map है ना, ancient Greek map, which is now coming on your screen, the ancient Greek map is, see, they are divided into 2 islands. 2 islands में divided है. ऊपर आपको माइसने नज़र आ रहा है, नीचे आपको क्रेट नज़र आ रहा है. और आप देखेंगे कि जो ग्रीस का आइलैंड है उससे थोड़ा आइसोलेटेड है, नीचे की तरफ है क्रेट. एंड क्रेट जो है वो आइसोलेटेड भी था, और प्लस वहाँ पर कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने, कुछ फार्मर्स, कुछ जिन्हें कह सकते हैं हम कि जिन्हें हम चरवाहे कहते हैं,
नेचुरल, हमारी अपनी हिंदी की भाषा में हम उन्हें चरवाहे कहते हैं, या उनको हम ऐसे लोग कहते हैं जो बंजारे टाइप्स होते हैं, वो उन लोगों ने वहाँ जाके बसना शुरू कर दिया क्रेट में, और उन लोगों को मिनोअन्स कहा जाता था क्योंकि उनके किंग का नाम था किंग माइनोस. सो किंग माइनोस से उन लोगों का नाम पड़ा मिनोअन्स, एंड दिस सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड द मिनोअन सिविलाइजेशन. बट ग्रेजुअली अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो मिनोअन्स हैं एंड जो माइसेनियंस हैं, उन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था कि मिनोअन्स जो थे वो सीधे साधे फार्मर लोग थे, और माइसेनियंस जो थे वो लोग वॉर लाइक सोसाइटी थे. वो लोग बहुत पावरफुल थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत वेल रेड थे. ग्रेजुअली कुछ समय के बाद जो माइसेनियंस थे उन्होंने मिनोअन्स के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद उसको कैप्चर करके उसको अपनी जो उनका एम्पायर था उसके अंदर ऐड कर लिया क्रेट को. एंड लेटर ऑन Crete also became a part of the Mycenaean civilization. And Mycenaean civilization, minded, was a very, very prolific, it was a very abundant civilization. उस civilization में ट्रोजन वॉर को कहा जाता है कि ट्रोजन वॉर हुआ था, और माइसनी को ग्रीक एम्पायर पूरी तरह से कंट्रोल किया करता था, और माइसेनियंस जो थे वो दे वर रूल्ड बाय द ग्रीक्स. और ट्रॉय जो था, ट्रॉय के अंदर ट्रॉय का जो ये पूरा का पूरा जो एपिसोड आता है हमारी ग्रीक माइथोलॉजी में, वो इसी पीरियड के दौरान आता है. एंड दिस पीरियड वॉज फ्रॉम 1500 BC टू 1200 BC. अब इस पर्टिकुलर पीरियड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ये हैं, एक तो माना जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही ट्रोजन वॉर हुआ. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि वी ऑल हैव heard the myth of Icarus. The myth of Icarus, everybody has known. If you don't know about the myth of Icarus, let me give you a very brief idea of it. So what happened was that Icarus and Daedalus were son and father. Daedalus was the father, Icarus was the son. What happened was that Daedalus was a very great inventor, and he was given a task by the king of Crete. And what was the task? The task was to make a labyrinth. Labyrinth क्या? एक भूल भुलैया बनानी है. किसके लिए? मॉन्स्टर के लिए. एक मॉन्स्टर के लिए जो डेडालस था उसको एक भूल भुलैया बनानी थी. एंड एज आई टोल्ड यू, डेडालस वाज अ वेरी ग्रेट इन्वेंटर. So what happened? He made the labyrinth, but now nobody could solve the labyrinth except Daedalus. तो किंग ऑफ क्रेट ने क्या किया कि डेडालस और इकारस दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया. नाउ डेडालस ने क्या किया? डेडालस ने उस जेल में बहुत समय तक अपना समय बिताया, और उसका बेटा जवान हो गया. अब नाउ द बेटा वांट्स टू गो आउट इन द वर्ल्ड, एक्सप्लोर the world, the Greek civilization. तो what Daedalus did is Daedalus made wings. अब वो जो प्रिजन थी उन दोनों की, वो एक बहुत ऊंचे टावर के ऊपर थी, बहुत ऊपर था वो टावर. उनकी प्रिजन बिल्कुल ऊपर थी, आसमान में कहीं. तो जैसे हम रपुंजल की स्टोरीज देखते हैं, तो रपुंजल भी एक टावर में रहा करती थी, ऐसे ही ये दोनों भी एक टावर के अंदर कैप्चर्ड थे. What Daedalus did was he made wings for both of them. Now the speciality of these wings were that these wings were made of wax. Daedalus warned his son कि तुम इन wings को लेकर सूरज के पास ना जाना, सूरज के पास उड़ने की कोशिश मत करना. अगर सूरज के पास जाके उड़ने की कोशिश करोगे तो ये विंग्स पिघल जाएंगे और तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी. मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा. तो इकारस अग्रीड, एंड डेडालस एंड इकारस दोनों ने मिलकर उन वैक्स के विंग्स को पहना और वो वहाँ से निकल गए. Now Icarus was a young boy like all of us, and he wanted to explore, he wanted to see कि मैं कौन सी दुनिया में आया हूँ. और वो उन पंखों को फड़फड़ाता हुआ वो सूरज की तरफ को जाने लगा, जैसा उसके फादर ने उसे मना किया था. और because of this rebellion by Icarus,
इकैरस के विंग्स पिघल गए क्योंकि वो वैक्स के थे और इकैरस नीचे गिर गया और वो मर गया। तो इस पर्टिकुलर कहानी के बहुत इंटरप्रिटेशंस लगाए जाते हैं और इसी तरीके की बहुत सारी फोक टेल्स हमें ग्रीक लिटरेचर से मिल सकती हैं। बहुत पॉपुलर हमारे पास फोक टेल्स हैं। इवन हम आगे जो बियोवुल्फ पढ़ेंगे, बियोवुल्फ इज़ ऑल्सो अ फोक टेल एंड you should read more about Beowulf because Beowulf में से questions आ जाते हैं। अब भी बहुत सारे नॉवेलिस्ट मिथ ऑफ इकैरस में से काफ़ी रेफरेंसेस लेते हैं। बहुत राइटर्स मिथ ऑफ इकैरस से रेफरेंसेस लेते हैं, बट येस द ट्रोजन वॉर एंड दिस स्टोरी ऑफ मिथ ऑफ इकैरस बोथ आर कमिंग फ्रॉम दिस माइसीनियन सिविलाइजेशन। माइसीनियन सिविलाइजेशन 400 साल तक रही, बट 100 ईयर्स के बाद ये सिविलाइजेशन डिसमेंटल होने लग गई और अल्टीमेटली ये ख़त्म हो गई। ख़त्म किस लिए हुई? ख़त्म हुई क्योंकि डोरियन इन्वेजन आ गया। What was the Dorian invasion? The Dorian invasion started from 1200 BC और 800 BC तक ये डार्क एजेस चले। इन एजेस में सी से कुछ बहुत सारे सैवेजेस, पायरेट्स आए और उन लोगों ने आके इस पूरी सिविलाइजेशन को बर्बाद कर दिया। इनकी सारी आर्किटेक्चर को तोड़ दिया, इनकी सारी नॉलेज को बर्बाद कर दिया, इनका सारा लिटरेचर ख़त्म कर दिया। जो इतना रिच ये सिविलाइजेशन थी, माइसीनियन सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन धूमिल हो गई, मिट्टी में मिल गई। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बेहतरीन हुई डार्क एजेस में, वो हुआ होमर का आना। होमर का जन्म इसी टाइम पीरियड में हुआ। हम सब में से मतलब नोबडी नोज़ कि होमर कब पैदा हुए, लेकिन होमर जो थे उन्होंने इन माइसीनियन सिविलाइजेशन की फोक टेल्स को उठाकर, कहानियों को उठाकर ये 2 ग्रेट एपिक्स लिखे। वन वॉज ओडिसी एंड द अदर वॉज इलियड, एंड वी ऑल नो कि वो कितने ग्रेट थे। होमर के बारे में हम और पढ़ेंगे, बट अनदर एंड लास्ट fact that I want to share with you from the Mycenaean civilization is that Mycenaean civilization के अंदर linear B script का जन्म हुआ और इस linear B script के आने से फाइनली लोगों ने लिखना शुरू करा। Mycenaean civilization में राइटिंग का काम शुरू हुआ था इन द ग्रीक माइथोलॉजी, इन द ग्रीक लिटरेचर, द ग्रीक सिविलाइजेशन। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है कि कहाँ से ग्रीक सिविलाइजेशन में राइटिंग का वर्क शुरू हुआ, तो इट केम इन द माइसीनियन सिविलाइजेशन इन द लीनियर बी स्क्रिप्ट। So I would like to end my audio lecture over here. Thank you so much for coming and listening to this lecture. I would really appreciate any constructive criticism that you have to give in the comment section. Please take care of the language, and thank you so much.